Hello everyone, this is Varun Goyal, your maths teacher. Today we will continue with the topic exercise 5.2 of continuity and differentiability. So from here we will go to start a differentiability. Differentiability ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਾਜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨੇ? ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਨ ਦਾ +1 ਕਲਾਸ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹੋ, ਫਸਟ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ। ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਲਿਮਿਟ x ਅਪਰੋਚਿਸ ਟੂ c ਸੀ f of x ਮਾਈਨਸ f of c ਓਵਰ x ਮਾਈਨਸ c। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਲਿਮਿਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ। ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਅਤੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋਗੇ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਹੁਣ ਕਰਨੀ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਅਤੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਮਤਲਬ ਬਾਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਲਿਮਿਟ h ਅਪਰੋਚਿਸ ਟੂ 0। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਲਿਮਿਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ x ਅਪਰੋਚਿਸ ਟੂ 0 ਨੈਗੇਟਿਵ f of x, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਜਸਟ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿਮਿਟ h ਅਪਰੋਚਿਸ ਟੂ 0 f of ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 0 ਮਾਈਨਸ h ਮਾਈਨਸ f of 0 ਅਪੋਨ 0 ਮਾਈਨਸ h ਮਾਈਨਸ 0। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ। ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਲਿਮਿਟ x ਅਪਰੋਚਿਸ ਟੂ 0 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ fx is equal to limit h approaches to 0 f of 0 plus h minus f of 0 upon 0 plus h minus 0। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ। ਜੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਆ। ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਿਲਿਟੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਫ ਅ ਫੰਕਸ਼ਨ ਐਟ ਅ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ ਕੋਈ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਆ, 1 2 3 ਪਾਈ 2 ਪਾਈ 3 ਪਾਈ ਪਾਈ ਬਾਈ 2 ਵਟ ਐਵਰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਰ ਦੇ ਆਰ ਗਿਵਨ ਟੂ ਅਸ, ਜੇ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਾਹਦੀ ਕਰਨੀ ਆ? ਸਿੰਪਲ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੀ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ +1 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਰੋਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਵਿਦਾਊਟ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਿੰਪਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਦਿਸ ਵਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਫ ਦਿਸ ਵਨ। ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਨੀ ਇਹਨੂੰ y ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਲੈਟ ਕਰ ਲਓ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਣਾ ਵਾ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ dy/dx ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਦੇਖੋ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ। ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਵਾ cos ਥੀਟਾ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੱਸੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਥੀਟਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ x ਸਕੇਅਰ, x ਸਕੇਅਰ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਵਰ ਅੱਗੇ, ਫਿਰ ਪਾਵਰ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਘੱਟ ਜੂਗਾ, ਮਤਲਬ x ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਰਹਿ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ x ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 1 ਪਲੱਸ ਆ ਨਾਲ 5 ਆ, 5 ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? 0। ਬਸ ਇਹ ਆਨਸਰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 1 ਦਾ। ਸੋ ਹੇਅਰ ਯੂਰ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 1 ਇਜ਼ ਕੰਪਲੀਟਡ। ਨਾਓ ਲੈਟ ਅਸ ਸੀ ਦੈਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 2 ਆਫ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 5.2। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 2 ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ cos of sin x। ਰਾਜੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ 'ਚ, ਤਾਂ dy/dx ਇਕੁਅਲ ਟੂ cos ਥੀਟਾ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ। ਥੀਟਾ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿੰਨਾ ਵਾ? sin x। ਅਤੇ sin x ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? cos x। ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ। ਸੋ ਹੇਅਰ ਦਿਸ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਕੰਪਲੀਟਡ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 3 ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 3 ਸੇਮ ਆ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ, ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਸੋ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ ਬਾਈ ਯੂਅਰ ਓਨ ਸੈਲਫ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 4 ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 4 ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਸੀਕੈਂਟ ਆਫ tan √x। ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਸੀਕੈਂਟ ਥੀਟਾ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਫ ਸੀਕੈਂਟ ਥੀਟਾ। ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਸੀਕੈਂਟ ਥੀਟਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਹਨੂੰ y ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ dy/dx ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਸੀਕੈਂਟ ਥੀਟਾ, ਥੀਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵਾਰ ਆ ਸਾਰਾ, ਇਨਟੂ tan ਥੀਟਾ, tan ਫਿਰ ਥੀਟਾ, ਅਤੇ ਥੀਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਥੀਟੇ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ tan √x, ਅਤੇ tan √x ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ?
ਸੀਕੈਂਟ ਸਕੇਅਰ रूट x। उस तो बाद राजे रूट x का भी डेरीवेटिव करांगे तो रूट x का डेरीवेटिव किमें होएगा, पहला पावर अगे 1/2 रूट x है ना, रूट x में आप लिख सकते हैं x रेज टू पावर 1/2, पहला पावर अगे फिर पावर चो एक माइनस करांगे तो -1/2, फिर x का डेरीवेटिव कितना होएगा 1। सो इन दिस वे वी आर एबल टू फाइंड दिस डेरीवेटिव। आफ्टरवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम दिस एक्सरसाइज, sin ax plus b over sin cx plus d, sin ax plus b over sin just a minute, sorry here I have to write cos cx plus d। ठीक है जी, ये आपां नूं y दे इक्वल दिता होया वा ते हुण अपना काम की आ भी आपां इस फंक्शन की डिफरेंशीएशन फाइंड करनी है। सो इस फंक्शन की डिफरेंशीएशन फाइंड करनी किवें है वो देखो ध्यान नाल। सो इस फंक्शन की डिफरेंशीएशन फाइंड करने लिए दो फंक्शनस ने अप डाउन चा, तो ये उपर कोशेंट रूल लगाने होंगे आप। तो कोशेंट रूल की होंगे इस फंक्शन का, पहला आप लिख दें नीचे वाले का स्केयर एज इट इज़ तो नीचे वाला फंक्शन इतने एज इट इज़ cx प्लस डी, साइन ax प्लस बी का डेरीवेटिव हो जाना है cos ax प्लस बी, तो ax प्लस बी का a इतने लग जाना है माइनस हुण साइन ax प्लस बी एज इट इज़ तो cos ax cx प्लस डी का डेरीवेटिव कितना हो जाना वा साइन cx प्लस डी, वो नैगेटिव साइन आऊगा, नैगेटिव इतने प्लस हो गया, cx प्लस डी का डेरीवेटिव कितना आ जाना है c, तो वो c मैं इतने लिख सकता। सो हेयर इन सच अ मैनर दिस क्वेश्चन इज टू बी कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया, तो हुण आपां गल करते हैं नैक्सट क्वेश्चन की। सो ये सी क्वेश्चन रूल की हैल्प नाल आपां क्वेश्चन नूं सॉल्व किया। नैक्सट आंदा अपने कोल क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। स्टेटमेंट फॉर द क्वेश्चन नंबर 6 इज डिफरेंशिएट, थोड़े जे क्वेश्चन अप लैवल के ने, cos x क्यूब साइन स्केयर x रेज टू पावर 5, थोड़ा जा बस ध्यान नाल करने वाले क्वेश्चन ने, होर इन्हां कुछ भी नया नहीं है। तो y इक्वल टू आप लिख सकते हैं cos x का क्यूब पहला फंक्शन इनटू नैक्सट आप लिखांगे साइन स्केयर x रेज टू पावर 5 दूसरा फंक्शन। तो प्रोडक्ट रूल आप इन्हां दे उपर अप्लाई करना वा। प्रोडक्ट रूल किमें अप्लाई करना है हुण वो देखो। सब तो पहला तो इत्थे आ जाएगा dy/dx इक्वल टू इत्थे cos x का क्यूब फस्ट फंक्शन एज इट इज़, ठीक है जी। तो इस तो बाद फस्ट फंक्शन एज इट इज़, उस तो बाद डेरीवेटिव आप करांगे ए वाले फंक्शन का। देखो पहला साइन के उपर स्केयर आ, तो पावर 2 अगे इत्थे रह जाएगा मेरे को साइन x रेज टू पावर 5 इदा, तो यदा डेरीवेटिव कितना आएगा साइन x रेज टू पावर 5 का, यदा आएगा cos x रेज टू पावर 5, फिर x रेज टू पावर 5 का डेरीवेटिव आएगा 5x रेज टू पावर 4 प्लस अगली बार साइन स्केयर x रेज टू पावर 5 एज इट इज़, यदा cos थीटा डेरीवेटिव होंगे माइनस ऑफ साइन थीटा, ठीक है जी। तो वो लिख लिया मैं इत्थे, तो थीटा डेरीवेटिव कितना आ जाना 3x स्केयर। तुसी ए वाला माइनस इत्थे शिफ्ट कर सकते हो, यू विल गेट योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो इतना थोड़ा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की गल करते हैं। 7th क्वेश्चन के विच अपने को की रिजल्ट है, अपने को हैगा ट्वाइस ऑफ अंडर रूट कॉट x का स्केयर, ये चीज़ है। तो इन्हों आप y दे इक्वल लैट करांगे, y इज इक्वल्स टू 2 एज इट इज़ लिख लिया, मैं इतने लिख लेना कॉट x दे स्केयर यदी पावर 1/2, कुछ इस तरह लिख सकते हैं आप इनू। चलो इन्ना काम हो गया अपना। तो हुण अपने को की है डेरीवेटिव करन दा, तो dy/dx इज इक्वल टू आ 2 तो कॉन्सटेंट आ, पहला पावर अगे आऊगी, फिर कॉट x स्केयर यदी पावर दे विचों एक चीज़ माइनस हो जाएगी। तो डेरीवेटिव करना आप कॉट थीटा का, कॉट थीटा का डेरीवेटिव जो होंदा वा वो होंदा अपने को माइनस कोसेक स्केयर थीटा, ये होंदा वा कॉट थीटा का डेरीवेटिव। तो हुण इस तो बाद एक्स स्केयर का डेरीवेटिव वो कितना आएगा 2x, तुसी टर्म्स नूं अरेंज कर दो, माइनस अगे ले आओ, यू विल गेट योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आफ्टरवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8 इज योर होमवर्क क्वेश्चन दैट यू हैव टू डू बाय योर ऑन सेल्फ। नाउ बाय डेफिनेशन आपां करांगे क्वेश्चन नंबर 9 जो कि इस एक्सरसाइज चो मोस्ट इंपॉर्टेंट आ। बाय डेफिनेशन क्वेश्चन नंबर 9। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 नूं सॉल्व करते हैं with the help of a great definition that is left hand derivative as well as right hand derivative.
ਸੋ ਦੇਖੋ ਰਾਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ f(x) ਇਕੁਅਲ ਟੂ x-1 ਦਾ ਮੋਡੂਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ x ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਵਾ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਨੂੰ, ਇਜ਼ ਨੋਟ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਐਟ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ ਲਿਮਿਟ h ਅਪਰੋਚਿਸ ਟੂ 0 ਨੈਗੇਟਿਵ। 0 ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ c ਮਾਈਨਸ h ਮਾਈਨਸ ਐਫ ਆਫ c ਅਪੋਨ, ਦੇਖੋ c ਮਾਈਨਸ h ਮਾਈਨਸ c, ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਮਾਈਨਸ h ਬਚੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਐਫ ਆਫ c ਮਾਈਨਸ h, ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ c ਮਾਈਨਸ h ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ c ਮਾਈਨਸ h ਮਾਈਨਸ 1 ਇਹਦਾ ਮੋਡੂਲਸ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਈਨਸ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਫ ਆਫ c, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ c ਮਾਈਨਸ 1 ਦਾ ਮੋਡੂਲਸ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ। ਓਵਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਮਾਈਨਸ h, ਤੇ ਲਿਮਿਟ h ਅਪਰੋਚਿਸ ਟੂ 0, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਚ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮੋਡੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮੋਡੂਲਸ ਸੋਲਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਮੋਡੂਲਸ ਦੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਬਿਲਿਟੀ ਉਹਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹਾ ਵਾ, 1 ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ 1 ਦੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ 0 ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ। ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਉਹਨੇ 1 ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 1 ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹ ਆਏਗਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਮਿਟ h ਅਪਰੋਚਿਸ ਟੂ 0 ਨੈਗੇਟਿਵ f of 1 ਮਾਈਨਸ h ਮਾਈਨਸ f of 1 ਓਵਰ ਮਾਈਨਸ h, ਤਾਂ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਲਿਮਿਟ h ਅਪਰੋਚਿਸ ਟੂ 0। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 1 c ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ 1 ਰਿਪਲੇਸ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 1 ਮਾਈਨਸ h ਮਾਈਨਸ 1 ਦਾ ਮੋਡੂਲਸ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਾਈਨਸ 0 ਹੋਏਗਾ ਅਪੋਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਾਈਨਸ h। ਆਹ ਮਾਈਨਸ 1 ਨਾਲ ਪਲੱਸ ਦਾ 1 ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਮਾਈਨਸ h ਦਾ ਮੋਡੂਲਸ ਹੁੰਦਾ ਪਲੱਸ ਦਾ h, ਤਾਂ ਲਿਮਿਟ h ਅਪਰੋਚਿਸ ਟੂ 0 ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ h ਅਪੋਨ ਮਾਈਨਸ h, ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ, ਮਾਈਨਸ 1 ਆ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਿਮਿਟ h ਅਪਰੋਚਿਸ ਟੂ 0 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ f ਆਫ 1 ਪਲੱਸ h ਮਾਈਨਸ f ਆਫ 1 ਅਪੋਨ h, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਮਿਟ h ਅਪਰੋਚਿਸ ਟੂ 0 1 ਪਲੱਸ h ਮਾਈਨਸ 1 ਦਾ ਮੋਡੂਲਸ ਮਾਈਨਸ 0 ਅਪੋਨ h, 1 ਨਾਲ 1 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ h ਅਪੋਨ h ਲਿਮਿਟ h ਅਪਰੋਚਿਸ ਟੂ 0, h ਨਾਲ h ਕੈਂਸਲ, ਆਂਸਰ ਇਜ਼ 1। ਇੱਕ ਦਾ ਆਂਸਰ ਮਾਈਨਸ 1 ਆਇਆ, ਇੱਕ ਦਾ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 1। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਤਾ ਵੀ ਦਿਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ not to be continuous at not to be differentiable at x equal to 1. So here this question is completed. Now let us see the last question of this exercise, that is also an important question for you all. Next है जी question number अपने को 10 ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ f(x) equal to box x ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹ 1 ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ 2 ਦੇ ਉੱਪਰ, at x equal to 1 ਤੇ at x equal to 2। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਲਿਮਿਟ h ਅਪਰੋਚਿਸ ਟੂ 0, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, f ਆਫ 1 ਮਾਈਨਸ h, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ 1 ਮਾਈਨਸ h f ਆਫ 1 ਅਪੋਨ ਕੀ ਆਏਗਾ ਮਾਈਨਸ h। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਦੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਬਾਕਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਪਾਰਟ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏਗਾ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ 1 ਮਾਈਨਸ h ਮਾਈਨਸ, ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਅਪੋਨ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਮਾਈਨਸ h। 1 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 0 ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਥਿੰਗ, ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ ਇਹਦਾ ਮੇਰਾ। ਤਾਂ 0 ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਥਿੰਗ ਦਾ ਬਾਕਸ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ 0 ਹੁੰਦਾ, 1 ਦਾ ਬਾਕਸ 1 ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਅਪੋਨ ਮਾਈਨਸ h, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਹਰ ਲਿਮਿਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ h ਅਪਰੋਚਿਸ ਟੂ 0, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਲਿਮਿਟ h ਅਪਰੋਚਿਸ ਟੂ 0 1 ਬਾਈ h, ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਾਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਜਾਏਗਾ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਲਿਮਿਟ h ਅਪਰੋਚਿਸ ਟੂ 0 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਏਗਾ 1 ਪਲੱਸ h ਦਾ ਬਾਕਸ ਮਾਈਨਸ 1 ਅਪੋਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ h, ਤਾਂ 1 ਪਲੱਸ h, 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਐਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਬਾਕਸ ਤਾਂ 1 ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ 1 ਮਾਈਨਸ 1 ਅਪੋਨ h ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 0। ਇਹ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਹੈ, ਇਹ 0 ਆ, आपस में मैच नहीं कर रहे, सो दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। हेयर स्टूडेंट्स योर दिस एक्सरसाइज इज टू बी कंप्लीटेड, ये थोड़ी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है इत्थे आके। तुसीं ये क्वेश्चन ट्राई कर लेने ने, कोई प्रॉब्लम है यू कैन कमेंट योर क्वेश्चन एंड इट्स स्टेटमेंट। सो टिल द टाइम
you must do the practice of all the questions. Afterwards we will start our new exercise 5.3 that is also based on differentiability and is an very easy exercise. So let us see what we have to do in this exercise number 5.3. students 5.3 बहुत सिंपल है, कोई इंट्रोडक्शन की आपां नूं रिक्वायरमेंट नहीं है। फस्ट क्वेश्चन देखते हैं। फस्ट क्वेश्चन 5.3 का जो आपां नूं दिता होया है वो कह रहा वा भी 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन एक्स। तुसीं फाइंड करना वा dy बाई डी एक्स इक्वल टू फाइंड। तो dy बाई डी एक्स आपां किवें फाइंड करांगे, सो वो देखते हैं। तो पहला तो इनू लिख दो डिफरेंशीएट, इनू 1 मान लेने 1 विद रिस्पैक्ट टू एक्स, विद रिस्पैक्ट टू एक्स करना है। तो इत्थे आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ 2x प्लस डी डी एक्स ऑफ 3y इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ये चीज़ आ जाएगी। डी डी एक्स ऑफ 2x कितना आएगा 2 प्लस 3 नूं मैं बाहर कढ़िया कॉमन, तो इत्थे आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स का कितना हुंदा कॉस एक्स। मैनू कल्ला डी वाई बाई डी एक्स एक साइड पर चाहिए, तो पहला 2 उधर ले जाओ। तो ये हो गया 3 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स माइनस 2। तो 3 इधर की आ जाएगा बाद डिवाइड्स, तो यह मतलब डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू cos x minus 2 over 3. This will be the answer of your question. Very simple questions are there. So ये सी आंसर। सैकेंड क्वेश्चन सेम है, तुसी खुद ट्राई करना है। थर्ड भी तुसी ट्राई करोगे इस एक्सरसाइज का। फोर्थ क्वेश्चन भी तुसी ट्राई करना, जो सिंपल क्वेश्चन जो मैं नहीं करवाऊंगा, ठीक है जी। आफ्टरवर्ड्स वी विल कंटिन्यू विद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट देखो। जे प्रीवियस किसी क्वेश्चन प्रॉब्लम आती है तो तुसी मैनू दस सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्केयर वाई प्लस एक्स वाई स्केयर प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 81। डिफरेंशिएट विद रिस्पैक्ट टू एक्स। बहुत ध्यान नाल समझना है। एक्स क्यूब का डेरीवेटिव वो आएगा 3x स्केयर, ठीक है। प्लस इतने दो फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल। पहला एक्स स्केयर एज इट इज़ वाई का होगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस फिर वाई एज इट इज़ एक्स स्केयर का कितना आ जाऊगा 2x। उस तो बाद प्लस इत्थे फिर दो फंक्शन ने, तो फिर प्रोडक्ट रूल लगेगा। पहला अपने को एक्स एज इट इज़ वाई का कितना होगा 2y फिर वाई का डी वाई बाई डी एक्स प्लस उस तो बाद प्लस का साइन यूज़ करांगे, फिर वाई स्केयर एज इट इज़ एक्स का 1 ही हो गया प्लस वाई क्यूब का कितना आएगा 3y स्केयर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 81 का डेरीवेटिव कितना आ जाऊगा 0, क्योंकि 81 कॉन्सटेंट टर्म है अपने को, ठीक है जी। तो हुण मेरे को डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स जो हैगियां ने कॉमन कड्ढन तो बाद की बचेगा वो मैं लिखन जा रहा इत्थे। वो देखो वो बचेगा एक्स स्केयर एक अपने को प्लस द 2xy प्लस 3y स्केयर। ये टर्म्स के नाल मेरे को आ रहा वा वाई डैश मतलब डी वाई बाई डी एक्स। तो जिन्होंने नाल डी वाई बाई डी एक्स नहीं आ रहा वो टर्म्स हैगियां ने 3x स्केयर प्लस 2xy प्लस वाई स्केयर इक्वल टू की आ रहा 0। हुण तुहाडा काम की है, इनू इधर रखना, बाकी सारा कुछ शिफ्ट कर देना। यू विल गेट द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। सो हेयर योर क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑल्सो टू बी कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 7 यू हैव टू डू बाई योर ओन सेल्फ। 8th क्वेश्चन भी तुसी खुद करोगे ट्राई। नाउ लेट अस सी द डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 तो आप डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन ने वो देखते हैं भी उन्होंने किद्दां सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 9 स्टेटमेंट इज y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्केयर। थोनू सारिਆਂ ਨੂੰ ट्रिगनोमैट्रिक फॉर्मूले इस एक्सरसाइज के लिए याद होने चाहिए जे तुसी क्वेश्चनस नू ईजी मैनर नाल करना चाहते हो। जे थोनू डिफिकल्ट मैनर नाल ही करने हैं दैन इट इज़ अप टू यू। ओके सो नाउ इत्थे आपां लिखांगे पुट x इक्वल्स टू टैन थीटा। तो अपने को y की वैल्यू आ रही है साइन इनवर्स 2 टैन थीटा ओवर 1 प्लस टैन स्केयर थीटा, ठीक है जी। तो ये बनेगा अपने को y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। साइन के नाल साइन कैंसल हो गया, आप कहने होंगे पर करके नहीं दिखाते होंगे। y की वैल्यू आ गई 2 थीटा, तो y की वैल्यू आ जाऊगी 2 थीटा की वैल्यू इतों कड्डो। आ जो टैन आ इधर आके की हो जाएगा इनवर्स, तो ये हो गया टैन इनवर्स एक्स। हुण आप डिफरेंशिएट करांगे विद रिस्पैक्ट टू एक्स, तो वाई डैश की वैल्यू आ जाऊ 2 कॉन्सटेंट। टैन इनवर्स एक्स का डेरीवेटिव होंगे 1 ओवर अंडर रूट विदाउट अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्केयर। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट देखो राजी, ये सब्सटीट्यूशन की आएगी अपने को
क्वेश्चन नंबर 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆ ਉਹ tan ਥੀਟਾ ਆਏਗੀ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ क्वेश्चन नंबर 10 y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब ओवर 1 माइनस 3x ਦਾ ਸਕੇਅਰ। ਤਾਂ x ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ tan ਥੀਟਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਜਾਊਗਾ y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan 3 ਥੀਟਾ। ठीक है जी, x ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਵਾ tan ਥੀਟਾ। ਤਾਂ tan ਨਾਲ tan ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋਊਗਾ, ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ 3 ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ tan ਇਨਵਰਸ x। ਤੇ tan ਇਨਵਰਸ x ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ 3 ਓਵਰ 1 ਪਲੱਸ x ਸਕੁਅਰ। ਯੂਰ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਕੰਪਲੀਟਡ ਹੇਅਰ। 10th ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 11 ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਨਾ ਵਾ x ਨੂੰ tan ਥੀਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ cos 2 ਥੀਟਾ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਆਨਸਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਆਨਸਰ ਕੱਢਣਾ ਵਾ ਉਹ tan ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਵੀ tan ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਵਾਲਾ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ tan ਦੀ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 13th ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ। 13th ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्केयर। तो x ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ 'ਚ ਵੀ tan ਥੀਟਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਣੇਗਾ y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स sin 2 ਥੀਟਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਬਵ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ cos ਤੇ sin ਤਾਂ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਵਾਂ cos π/2 ਮਾਈਨਸ 2 ਥੀਟਾ। ठीक है जी, तो इत्थे cos ਦੇ ਨਾਲ cos कैंसल हो गया, तो y ਦੀ वैल्यू आ गई π/2 माइनस 2 थीटा। तो थीटा की वैल्यू आऊगी tan इनवर्स x। कुछ इस तरीके नाल आपां इहनूं सॉल्व करांगे, डिफरेंशिएट करांगे तो y डैश π/2 की वैल्यू 0 आ जाएगी, माइनस 2 कॉन्सटेंट आ, इहदा डेरीवेटिव आपां नूं पता वा भी इन्ना हुंदा। तो अल्टीमेटली इहदा आंसर अपने कोल इह वाला आ जाएगा। सो हेयर योर क्वेश्चन नंबर 13 इज टू बी कंप्लीटेड आल्सो। आफ्टरवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 14 देखो राजे। क्वेश्चन नंबर 14 ਦੇ ਵਿੱਚ इट इज़ अप टू यू भी ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ cos ਥੀਟਾ ਪੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ y इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस x ਦਾ होल स्केयर। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖੂੰਗਾ ਪੁੱਟ x इक्वल टू साइन थीटा। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ y इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्केयर थीटा। तो ये हो गया y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्केयर थीटा होंगे cos स्केयर थीटा। तो cos स्केयर के नाल रूट कट्टिया जाना, तो मेरे को कल्ला बचा इत्थे cos थीटा। 2 साइन थीटा cos थीटा का फॉर्मूला होंगे साइन 2 थीटा। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। साइन के नाल साइन कैंसल, y इज इक्वल्स टू 2 थीटा। तो थीटा की वैल्यू जो मैं रिप्लेस करूँगा वो आएगी मेरे को साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स x से डिफरेंशिएशन 2 कॉन्सटेंट ओवर 1 माइनस एक्स स्केयर द रूट। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ योर दिस क्वेश्चन। ठीक है जी, ये थोड़े क्वेश्चन का आंसर है। लास्ट क्वेश्चन इज योर होमवर्क क्वेश्चन ऑल्सो, यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन बाय योर ऑन सैल्फ। तुसी ये क्वेश्चन लास्ट वाला जो है खुद ट्राई करोगे। ठीक है जी, ये मैं थोड़ी कोई हैल्प नहीं करनी। लास्ट वाले क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन है। हाँ फिर भी जे थोनों कदे कन्फ्यूजन है किसी चीज़ में लैके, कोई चीज़ नहीं क्लीयर होंगी, दैन यू कैन डिस्कस इट विद मी। आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम ऑफ दिस क्वेश्चन। आफ्टरवर्ड स्टूडेंट्स वी विल कंटिन्यू आर एक्सरसाइज 5.4। 5.4 स्टार्ट करने तो पहला मैं एक चीज़ दसूँगा भी डी डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर एक्स वो हमेशा ई रेज टू पावर एक्स होंदा वा, तो डी डी एक्स ऑफ ए रेज टू पावर एक्स वो हमेशा ए रेज टू पावर एक्स लॉग ए होंदा है। रीजन दोनों ही एक्सपोनेंशियल फंक्शंस ने बट दोनों डेरिवेटिव डिफरेंट क्यों आ, रीजन दे देना। डी डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर एक्स वो भी इदा ही होंदा, ई रेज टू पावर एक्स इंटू लॉग ई। तो लॉग तो ई एक दूजे की कर देगा कैंसल कर देंगे। सो यदा आंसर आ जाता ई दी पावर एक्स इंटू 1। दैट्स वाई यदा डेरीवेटिव आप ये लिखते हैं, तो यदा डेरीवेटिव आप इस तरह लिखते हैं। सारी एक्सरसाइज एक्सपोनेंशियल फंक्शन के उपर बेस्ड है, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, कुछ भी ये न्यू नहीं है। सो आप स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1।
सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है अपने को y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x ओवर साइन x। दिस इज द स्टेटमेंट रिक्वायर्ड। तो y डैश कितना आएगा, देखो राजे ऑबवियस जी गल है भी ये उपर क्वेश्चन रूल लगना वा। क्वेश्चन रूल की लगेगा, पहला तो इतने आ जाएगा साइन एक्स का होल स्केयर, फिर साइन एक्स एज इट इज ई दी पावर एक्स का ई दी पावर एक्स माइनस ई दी पावर एक्स का ई दी पावर एक्स होंगे, तो साइन एक्स का कितना हो जाएगा कॉस एक्स। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की गल करते हैं, y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर साइन इनवर्स एक्स, तो y डैश आ जाएगा ई दी पावर साइन इनवर्स एक्स एज इट इज़, फिर साइन इनवर्स एक्स का डेरीवेटिव, वो अपने को जो डेरीवेटिव आएगा वो कितना आएगा अपने को 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्केयर। बस खत्म, सिंपल क्वेश्चंस ओवर हो रहे हैं अपने नाल दी नाल इत्थों। ठीक है जी, सो ये 2 क्वेश्चंस हो गए अपने को। इस तो बाद राजी अपने को जो क्वेश्चन है कहना शो दैट द फंक्शन, जस्ट अ मिनट राजी, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया अपना, सेकंड हो गया, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हैगा ई रेज टू पावर एक्स क्यूब। थर्ड क्वेश्चन इज ई रेज टू पावर एक्स क्यूब, तब y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स क्यूब, y डैश इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स क्यूब एज इट इज, फिर एक्स क्यूब का कितना आएगा 3x स्केयर। खत्म हो गया क्वेश्चन नंबर 3 भी ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 4 देखो थोड़ा जा डिफरेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 तो वो स्टेटमेंट हैगी है y इज इक्वल्स टू साइन टैन इनवर्स ई एक्स, कंपोजिशन ऑफ 2 और 3 फंक्शंस आर गिवन हेयर, ईजी है। साइन थीटा तो वह होंगे वा अपने को कॉस थीटा, ठीक है जी। तो थीटा डेरीवेटिव 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्केयर होंगी है, तो आ एक्स स्केयर हो जू, फिर एक्स का डेरीवेटिव ई रेज टू पावर एक्स होंगे वा, तो क्वेश्चन अपना इत्थे हो गया खत्म ये वाला। ठीक है जी, कुछ इस तरीके नाल आपां इस क्वेश्चन नूं सॉल्व करना सी ते आपां इहनूं सॉल्व करता ई रेज टू पावर एक्स दे नाल। सो योर क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑल्सो कंप्लीटेड। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो स्टेटमेंट अपने को हैगी है ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर एक्स स्केयर प्लस सो ऑन प्लस ई रेज टू पावर एक्स रेज टू पावर 5। ठीक है जी, ये स्टेटमेंट आपको दी हुई है, इनू आप सॉल्व करना। तो वाई के इक्वल ले लें, तो इतने वाई डैश की आऊगा डी डी एक्स ऑफ ई एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ ई एक्स स्केयर प्लस सो ऑन प्लस डी डी एक्स ऑफ ई एक्स रेज टू पावर 5। सो ऑन नहीं है, मतलब क्यूब वाली है, फिर 4 वाली टर्म भी आ जानी है। ई दी पावर एक्स का डेरीवेटिव ई दी पावर एक्स होंगे, ई दी पावर एक्स स्केयर का ई दी पावर एक्स स्केयर होंगे, नाल आ जाऊगा 2x प्लस सो ऑन प्लस ई दी पावर एक्स रेज टू पावर 5 का इदा ही होंगे, तो एक्स रेज टू पावर 5 का आ जाएगा नाल 5x रेज टू पावर 4। सो हेयर योर दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो कंप्लीटेड, सिंपल क्वेश्चन ही खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन ने ये सारे के सारे। सो क्वेश्चन नंबर 7 वो स्टेटमेंट देखते हैं, y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर रूट एक्स द रूट। फरदर इनू आप लिख सकते हैं ई रेज टू पावर रूट एक्स ए दी पावर 1/2, तो वाई डैश कितना आएगा, पहला 1/2 अगे ई दी पावर रूट एक्स तो विचों एक माइनस हो जाएगा पहली चीज़, फिर रूट एक्स का कितना आएगा अपने को 1/2 रूट एक्स आ जाएगा, तो एक्स का कितना आएगा 1। ठीक है जी, आ 1/2 हो गया 1/4, रूट एक्स भी लिख लेने, ई दी पावर रूट एक्स द रूट, ये नीचे आ जाऊगा नैगेटिव पावर करके। ठीक है जी, सो इधर डेरीवेटिव नाल एक आना सी इत्थे अपने को ई रेज टू पावर रूट एक्स ओ एज इट इज। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 7। 7th क्वेश्चन इज ऑल्सो कंप्लीटेड। आफ्टरवर्ड्स 8th क्वेश्चन इज योर होमवर्क क्वेश्चन, तुसी खुद ट्राई करोगे। 9th इज ऑल्सो योर होमवर्क क्वेश्चन, तुसी क्वेश्चन रूल लगा के ट्राई कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10th क्वेश्चन की है कॉस ऑफ लॉग एक्स प्लस ई एक्स, आ चीज़ दी हुई है अपन, तो एक्स की है अपने को ग्रेटर दैन 0, एक्स की वैल्यू अपने को ग्रेटर दैन 0 है। सो उस अकॉर्डिंग हम आप इस क्वेश्चन की करांगे सॉल्व करांगे। ठीक है जी, तो वाई के इक्वल एट कर लेने, वाई डैश कॉस थीटा डेरीवेटिव होंगे वा माइनस ऑफ साइन थीटा लॉग एक्स प्लस ई एक्स, तो थीटा डेरीवेटिव लॉग एक्स का 1/x प्लस ई एक्स का ई एक्स हो जाना। दिस विल बी द आंसर ऑफ योर दिस क्वेश्चन नंबर 10। सो हेयर दिस ईजीएस्ट एक्सरसाइज इज टू बी ऑल्सो कंप्लीटेड। यही एक्सरसाइज भी थोड़ी खत्म होंगी है इतने आके। नैक्सट अपने को जो एक्सरसाइज आ वो एक्सरसाइज बेस्ड है लॉग के उपर। लॉग दी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़िया हुई ने आप, लॉग m इंटू n, तो वो प्रॉपर्टी की सी लॉग m
प्लस log n, तो उस तो बाद आप प्रॉपर्टी पढ़ी सी log m रेज टू पावर n, तो वो सी n log m। कुछ ये दो प्रॉपर्टियां पढ़िया सी, यही ज़्यादा यूज़ होनिया ने। सो नैक्सट एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप देखने स्टार्ट करते हैं भी नैक्सट एक्सरसाइज आप की करना है तो किद्दां दे क्वेश्चन ने। टोटल 18 क्वेश्चन आर देयर अकॉर्डिंग टू द NCERT बुक ऑफ एक्सरसाइज 5.5। सो आप क्वेश्चन करते हैं रैंडमली, जे किसी क्वेश्चन मैंने लग्या भी ईजी आ दैट क्वेश्चन आई विल गिव टू यू फॉर द प्रैक्टिस एंड फॉर द फर्दर इन्वेस्टिगेशन। सो टिल द टाइम लेट अस सी एक्सरसाइज 5.5। बहुत ज़्यादा ईजी तो सिंपल एक्सरसाइज आ। आप वाई के इक्वल स्टेटमेंट में लैट कर लेना, उस तो बाद जो अपना काम है वो काम की है टेकिंग लॉग बोथ साइड। आप एक यही लाइन यूज़ करांगे तो इत्थे अपने को रिजल्ट आएगा log y इक्वल टू log ऑफ cos x प्लस log ऑफ cos 2x प्लस log ऑफ cos 3x। log लगान करके तिना सैपरेट कर लिया। log y का होगा 1/y इंटू y डैश मतलब dy/dx। तो log cos x का कितना आएगा 1/cos x, फिर cos x का माइनस द sin x, ठीक है जी, प्लस ਇਹਦਾ कितना आएगा 1/cos 2x, तो cos 2x का कितना आएगा माइनस ऑफ sin 2x, फिर 2x का कितना आएगा क्यों 2, प्लस 1/cos 3x इतने आएगा माइनस द sin 3x इंटू 3। तो ये चीज़ आ गई, ये हो गया डेरीवेटिव सॉल्व cos x ओवर sin x। तो ये बने अपने को माइनस द tan x, इतों मैं माइनस द 2 अगे लिख लेना sin 2x/cos 2x होंदा वा tan 2x, ठीक है जी। इतों मैं माइनस द 3 अगे लिख लेना sin 3/cos 3 होंदा वा tan 3x। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 1। सो ये सी तुहाडा क्वेश्चन नंबर 1 उहदी स्टेटमेंट ते उहदा आंसर। आई होप सो दिस क्वेश्चन इज टू बी क्लीयर टू यू ऑल। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट ईजी है, क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट इज y इज इक्वल टू x माइनस 1 x माइनस 2 ओवर x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। तो यदा रूट है, रूट में मैं लिखूँगा 1/2। जो मैं इत्थे लॉग लगाया तो लॉग लगान नाल log y इक्वल टू पहले पावर अगे आजू log m रेज टू पावर n वाली प्रॉपर्टी लगा के इत्थे आ जाएगा log के नाल आही सारी ब्रैकेट सेम आ सारिया टर्म्स ओवर ची, ठीक है जी। log m/n की प्रॉपर्टी उस तो बाद तो वह होएगा 1/2 log m x माइनस 1 x माइनस 2 माइनस log n कितनी है x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 इदा। हुण इत्थे प्रॉपर्टी लगेगी log m इंटू n की, तो वह प्रॉपर्टी की सी 1/2 log m प्लस log n इत्थों, ठीक है जी। माइनस का साइन है ये भी वही प्रॉपर्टी log x माइनस 3 माइनस log x माइनस 4 माइनस log x माइनस 5। सो ये प्रॉपर्टीज़ मैं लगातियाँ, लगा के प्रॉपर्टीज़ मैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट में इत्थे तक कन्वर्ट करता। आफ्टर दिस कन्वर्जन जो बाकी काम है डेरीवेटिव वाला वो तुसी खुद करोगे। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ योर होमवर्क क्वेश्चन एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट देखो जी की दी हुई है आपां नूं। वो कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 दे विच आपां नूं x की पावर x माइनस 2 रेज टू पावर sin x आ चीज़ आपां नूं दित्ती हुई है। तो आपां पहले फंक्शन u मनांगे तो दूजे नूं v। तो u किहदे इक्वल है x की पावर x की, तो log u किहदे इक्वल होगा x log x के इक्वल होगा 1/u du/dx किहदे इक्वल आ गया पहले x एज इट इज़ log x का 1/x प्लस log x एज इट इज़ x का 1 हो गया। आ u उधर शिफ्ट हो जाएगा, x नाल x कट्टी गई, du/dx की वैल्यू आ जाएगी u कितना वा x की पावर x 1 प्लस log x। इनू मान लो इक्वेशन नंबर 1। आपां y इज इक्वल्स टू u माइनस v मन्निया, दिस इंप्लाइज y डैश इक्वल टू हुंदा वा u डैश माइनस v डैश। तो u डैश कढ़ लिया, इत्थे फिल कर देना, उदा ही आपां हुण v डैश कढ़ांगे। v की जो वैल्यू आ वो कितनी है 2 रेज टू पावर sin x। तो v डैश कितना आएगा देखो इतने लॉग लैन की लोड़ ही नहीं, a की पावर x आ तो a की पावर x का डेरीवेटिव होंगे a की पावर x इंटू log e, ठीक है जी। दिस इज द सॉरी log 2। सो दिस 2 टर्म्स आ गई, इत्थे फिल कर दो
यू विल गैट योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। तो इत्थों ਤੁਹਾਨੂੰ क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर मिल जूगा। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ। ਦੇਖੋ ਰਾਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ क्वेश्चन नंबर 5 वो सिंपल है, वो तुसी खुद ट्राई करोगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 स्टेटमेंट इज इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। स्टेटमेंट थोड़े सामने है सारे दी। सो वो अकॉर्डिंग अपने को जो रिजल्ट बन गया हूँ आप यूज़ करते हैं। यू की वैल्यू आ गई, उस तरह राजे कुछ नहीं करना, लॉग यू इक्वल टू एक्स लॉग एक्स प्लस 1/x लिख के ये उपर प्रोडक्ट रूल लगा देना तुसी। ते इत्थे लॉग v इक्वल टू 1 + 1/x अगे आएगा, नाल उहदे आएगा log x। तो इन्होंने दोनों के उपर भी की लगेगा प्रोडक्ट रूल। सिंपल प्रोडक्ट रूल लगा के तुसी क्वेश्चन नूं बड़े ईजी तरीके दे नाल सॉल्व करके वैल्यूज़ नूं सबस्टीट्यूट करना। होर इहदे विच कुछ नहीं है न्यू करवाने वाला। सो इस क्वेश्चन नूं इस हिंट तो बाद तुसी ट्राई करोगे। 7th क्वेश्चन भी सेम तुहानूं इसी तरह नाल करना पेगा। 8th क्वेश्चन इज आल्सो जस्ट लाइक दिस क्वेश्चन। आफ्टरवर्ड्स 9th सेम। क्वेश्चन नंबर 10th बेटा वो भी यू तो वी मान के तुसी लॉग लैके करोगे ट्राई क्वेश्चन। नैक्सट आई विल सी क्वेश्चन नंबर 12। नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 12। 12th क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं भी 12th क्वेश्चन अपने को की रिजल्ट है। 6th तो बाद डायरैक्टली क्वेश्चन नंबर 12 जे इत्थों तक के क्वेश्चन किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो तुसी मेरे नाल डिस्कस कर सकते हो। कल्ला कल्ला क्वेश्चन राजे आप नहीं सॉल्व कर रहे, इट विल गिव अस प्रॉब्लम। ठीक है जी, मतलब बहुत ज़्यादा लेंथ वध जानी है वीडियो की तो आपको प्रॉब्लम आऊगी। सो दैट्स वाई आप कल्ला कल्ला क्वेश्चन नहीं करांगे। क्वेश्चन नंबर 12 x रेज़ टू पावर y प्लस y रेज़ टू पावर x इक्वल टू 1 है। ये भी सिंपल ही अपने को। हुण इस क्वेश्चन करना की है, x रेज़ टू पावर y नूं मैं u मनूंगा तो y रेज़ टू पावर x नूं मैं v मनूंगा इस क्वेश्चन। तो हुण मैं करना की है, तो मैनूं चाहिए du/dx प्लस dv/dx इक्वल टू 0। इनू मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेना। हुण इत्थे आ जाएगा log u इक्वल टू y log x। पहली गल तो ये आ गई अपने को। डिफरेंशीएट कर दें आप। डिफरेंशीएट करांगे तो 1/u du/dx इक्वल टू पहला y एज इट इज़ log x का 1/x प्लस log x एज इट इज़ y का कितना आएगा अपने को y डैश। y का y डैश आ जाऊगा। तो du/dx की जो एग्जैक्ट वैल्यू होगी x रेज़ टू पावर y इंटू log x y डैश log x प्लस y ओवर x। तो ये आ गई अपने को वैल्यू। सिमिलरली राजी जो तुम फाइंड करनी है वैल्यू dv/dx की, तो dv/dx भी इसी तरीके से सॉल्व करके आएगा y रेज़ टू पावर x log y प्लस x ओवर y वाई डैश। ये चीज़ आ जाएगी अपने को। फ्रॉम हुण दीज टू इक्वेशनस आप ये वैल्यूज़ नूं की करांगे उपरली इस इक्वेशन फिल करांगे। वैल्यूज़ नूं फिल करांगे तो की आएगा x रेज़ टू पावर y इंटू आ वैल्यू अपने को आएगी log x वाई डैश प्लस y ओवर x प्लस y की पावर x है। इत्थे अपने को आएगा log y प्लस x ओवर y तो y डैश इक्वल टू की आएगा 0। ये तुसीं y डैश की वैल्यू कढ़ लोगे। y डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी नैगेटिव ऑफ y x रेज़ टू पावर y -1 प्लस y रेज़ टू पावर x log y ओवर x रेज़ टू पावर y log x प्लस x y रेज़ टू पावर x -1। आफ्टर सॉल्विंग दिस कैलकुलेशन यू आर गेटिंग दिस आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन राजी सेम है, तुसी खुद ट्राई करोगे। 14th भी तुसी ट्राई करना है नाल दा। 15th इज आल्सो यू हैव टू डू बाय योर ओन सैल्फ। 16th क्वेश्चन की लॉग की प्रॉपर्टी लगनी है सिंपल, तो वो लगा लेनी है। 17th क्वेश्चन आप जिमें डिस्कस किया सी लॉग लगा के प्रोडक्ट रूल लगा के ते आप प्रोडक्ट में एक्सपैंड करके भी अपन क्वेश्चन कर सकते हैं। तो वो क्वेश्चन भी मैं नहीं करवाऊँगा क्योंकि ये ऑलरेडी क्वेश्चन आप कर चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन जो है वो हैगा y इज इक्वल्स टू u/v/w। 18th क्वेश्चन y इज इक्वल्स टू u/v/w। ये 3 चीज़ां दित्तियां हुई हैं। तो इस क्वेश्चन को आप हुण सॉल्व किवें करना, किहदे इक्वल प्रूव करना वो देखते हैं आप। तुसीं इत्थे u नूं एक फंक्शन मान लो, v ते w नूं दूसरा फंक्शन मान लो, दोनों नूं एक फंक्शन मान के आप हुण सॉल्व करांगे। इत्थे हुण वो सॉल्व करने का क्राइटेरिया है कि वो ध्यान नाल समझना है। तो इत्थे आएगा dy/dx क्योंकि u/v/w अग्यों x के फंक्शन आ। पहला u एज इट इज़ ddx ऑफ v/w प्लस अगली बारी v ते w एज इट इज़ ddx ऑफ u। ठीक है जी। तो हुण देखो u एज इट इज़ ਇਹਦਾ डेरीवेटिव पहला आऊगा dv/dx w एज इट इज़ प्लस फिर u ते v एज इट इज़ dv
सॉरी dw/dx आ चीज़ आ गई प्लस इतने कितना आएगा vw du/dx. So this question is also completed in such a manner. Here your exercise is completed. ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਆਈ ਹੋਪ ਸੋ ਟਿਲ ਦਿਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਯੂ ਮੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਵਟ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਟੀਚ ਯੂ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਇਆ ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓਜ਼. Till the timing, thank you and have a wonderful day.